Hello everyone, good morning. Welcome me back in the revision of real number. I'm just hoping that you all are completing your revision properly and that too on time. Considering the deleted syllabus from this real number, the EDL, that is Euclid division lemma, is been cancelled from your syllabus. Considering that we are completing this revision, right? In case if you don't believe on this, or in case if your school has already taught you the previous part, that is EDL, then what you can do is you can again, let me tell you, from our worksheet, complete those simple question or complete the EDL from the exercise of your textbook. That would be sufficient. Okay, but other things I'm just completing it in this particular session. No issue, no confusion at all. Okay, so yesterday we completed question number 20 till question number 20. Question number 21, three bells toll at the interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. They start tolling together. After what time they will start together in the next toll? So that means I have to either find out HCF or I have to find out LCM, and that you need to understand whether to find HCF or LCM of 9, 12 and 15. The answer is LCM. Okay, so in the interval of 9 the first bell continues ringing. In the interval of multiple of 12 the next bell start ringing, and in the multiple of 15, so it is of course multiple, so least common multiple. So LCM if you find of 9, 12 and 15 you get your answer. तो आपको मैं LCM फाइंड कैसे करना है ये यहाँ पे दिखा देता हूँ. 9 is 3 square, 12 is 3 into 2 square, and 15 is 3 into 5. तो कॉमन मल्टीपल इज 3, बट ये LCM है. LCM इज कंसिडर द हाइएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स. सो 3 है, 2 है, 5 है. 3 का हाइएस्ट पावर 2 है, 2 का हाइएस्ट पावर 2 है, 5 का हाइएस्ट पावर 1 है. तो 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 into 5 I think 180. तो 180 minute. तो आफ्टर 180 minute it will start ringing together. It will ring together. ठीक है ना. डन. इट्स वेरी सिंपल है ना. बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा ईजी था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था. नेक्स्ट वन, बस हाँ एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग फिक्स कर दो, यू विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. देखो, शो दैट वन नंबर एक्जैक्टली आउट ऑफ दिस टू इज डिविजिबल बाय 3. हमने किए हुए क्वेश्चन है, आपके वर्कशीट में है. एंड ऑफकोर्स एट द सेम टाइम ये ईडीएल वाला क्वेश्चन है, तो ये कैंसिल है. ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो आप लोग वर्कशीट में देख के कर सकते हो इफ़ यू वांट. सेम 23rd EDL वाला क्वेश्चन है, इट इज़ बीन कैंसिल. ठीक है, लेकिन ये भी हमने किया हुआ है. फिर भी इफ़ यू वांट आई विल जस्ट शो यू HCF एंड LCM ऑफ दिस वन. देखो 117 को 65 इंटू समथिंग, मतलब हम लोग EDL से HCF फाइंड करेंगे. देखो LCM, अच्छा, expressible in the form of this one. Okay, HCF of this is expressible in form of this one, मतलब HCF is equal to this one. तो ये पॉसिबल है, देखते हैं. 65 वन जा, तो 117 minus 65 is 52 आई थिंक. ओके ठीक है, तो प्लस 52, तो 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस, डोंट नो, 65 माइनस 52, 13. ठीक है ना. एंड 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0, तो 13 इज माई HCF. तो 13 कैन बी एक्सप्रेस एज 65m माइनस 117. तो शिफ्ट करो यार, कुछ नहीं, m फाइंड करो, ईजी है, कुछ नहीं था, सिंपल है. ऑफकोर्स EDL वाला कॉन्सेप्ट ही है, नॉट अ बिग डील. हमने किया हुआ है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस किए हुए, डोंट हैव टू वरी. अभी हम लोग नहीं कर रहे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एज इन फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन. सो आई एम जस्ट कैंसलिंग इट, बट ऑफकोर्स इट इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर दिस PT1. इन केस स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड फाइंड LCM ऑफ नंबर्स, दिस इसके by prime factorization method or by fundamental theorem of arithmetic. Remember, fundamental theorem of arithmetic itself is prime factorization, remember that. And definition or statement of fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed in the product of prime number in a unique way. That's it. Uniquely you can say. Find LCM of these numbers. So factorize 2520, factorize 10530 and get it done. तो factorization कैसे करते हैं?
तो चलो देखते हैं 2520। नंबर्स आपको बड़े लग सकते हैं लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले बड़े नंबर से फैक्टराइज करो, मतलब 5 वगैरह ऐसे नंबर से करो, सो दैट थिंग्स विल बिकम ईजी। 5 5 25, 0 5 4 20। 2 से कर सकते हैं तो 2 25 जा, 2 2 4, 2 5 जा, एंड 2 2 4, 2 5 2, तो 2 1 जा, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 जा, 2 कितना जा, 2 3 जा, तो 7 से डिविजिबल है, 7 9 जा, सो 7 9 जा, 3 3 जा, दैट्स इट। So your 2520 is 2520 is 5 into 2 raised to 123 into 3 square into 7 and 10530, बाप रे 10530। चलो 5 से करते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 5 0 5 6 जा, ठीक है। तो 2 से कर सकते हैं, 2 1 2 0, 2 5 जा, 2 3 6। तो ये आ गया 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा, 3 से अगेन 3 1 जा, 3 1 जा, 3 7 जा 21, 3 से है अगेन, 3 3 जा 9, 3 7 जा, 3 9 जा 27, 3 13 जा, एंड 13 1 जा, दैट्स इट। सो 10530 इज इक्वल्स टू 5, और छोटे नंबर से करो तो 2 3 1 2 3 4 4 4 4, 3 रेस्ट टू 4 इंटू 5 इंटू 13 हो गया, दैट्स इट। एलसीएम नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, सो डोंट हेजिटेट टू डू मल्टीप्लिकेशन, मैं नहीं करने वाला हूँ। एलसीएम इज इक्वल्स टू, देखो मैं बस बता देता हूँ, ऑल द फैक्टर्स कलेक्ट करो और उसका हाईएस्ट पावर, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, बराबर है ना। तो 2 का हाईएस्ट पावर, 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, सॉरी 4 है, बाप रे, ठीक है। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है, 13 का 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। कैन वी डू इट? चलो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, सिंपल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो 24 भी हमने कर दिया। 25 अगेन हमने किया हुआ क्वेश्चन है लेकिन ईडीएल का ही है, 26 भी ईडीएल का ही है। ईडीएल इतना बड़ा पार्ट था कि ऑलमोस्ट हमारा रिवीजन उसने पूरा कम ही कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज लेफ्ट नाउ इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऐसे वाले क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे, वो डिस्कस करेंगे एंड हमारा काम खत्म हो गया। 20th क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, ईडीएल का ही है, ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये भी 27 भी क्या है, ईडीएल के ही क्वेश्चन है, सारे ईडीएल के क्वेश्चन है, ओके राइट। whether the rational number will be terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion in case if it is so, then let's see that. easy है, कुछ नहीं है। 7/75 हम लोग क्या करते हैं, 75 को मतलब डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 75 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5, 5 स्क्वायर इंटू 3, एंड अगर ये 2m एंड इंटू 3 5n फॉर्म में नहीं है तो इट इज़ टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब रिकरिंग है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इन 2m इंटू 5n फॉर्म, देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। कभी कभी क्या होता है, न्यूमरेटर डिविजिबल होता है 3 से, तो वो हमने देखा था। अगर इमेजिन करो कि ये 72 होता, 72/75 होता, इमेजिन करो, तो ये टर्मिनेटिंग होता, क्योंकि ये 3 से, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 72/5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3, तो ये 3 कैंसिल ही हो जाता है ना यहाँ पे। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में आ जाता है एंड देयरफॉर इट बिकम्स टर्मिनेटिंग। तो ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है, देखते क्या है। 6/1250, तो देखते 6/1250 क्या कर सकते हैं। तो 6/1250 इज इक्वल टू 6/1250, 1250 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे 1250 को, 2 2 जा या 5 से करेंगे ना, 5 इज ईजी, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 5, दैट्स इट। तो इट इज़ 5^4 इंटू 2^1, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंट विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो आपको बस करना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पता है, देखो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि ये जो 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 4 लाओ, 2 का पावर भी 4 करो, तो 2 का पावर 4 करने के लिए हमें 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 क्यूब से, तो ये हो जाएगा 6 × 8
अपॉन 10⁻⁴. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो 5 × 2 10 10⁻⁴, क्योंकि पावर सेम है. तो ये आफ्टर 4th डेसिमल प्लेस, जितना ये पावर होगा उतना ही डेसिमल प्लेसेस ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा. लेकिन फिर भी हम लोग टर्मिनेशन देख लेते हैं कि कहाँ जाता है. ठीक है, 48 अपॉन ऑन 1 4 zeros, तो ये हो जाएगा 0.0048. तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस. वही तो मैंने बोला था. ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई. बहुत सिंपल था. यही आप अभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखो, ये डेसिमल एक्सपांशन एंड ऑल. ओके, तो अगर ईडीएल नहीं है तो बहुत रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली अभी आएंगे. रिमेंबर दैट, रिमेंबर इट. तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना. ठीक है. शो दैट 5√6 इज़ एन इरेशनल नंबर. तो अगर जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो 5√6 इज इक्वल्स टू p/q फॉर्म. p/q मतलब वो रैशनल ऐसे कंसिडर करते हैं. लेट दिस बी रैशनल. सो दिस इम्प्लाइज √6 इज इक्वल्स टू p/5q. तो √6 I know that it is irrational number. Okay, considering √6 as an irrational number, okay, try to understand √6 as an irrational number. It's very clear that irrational number cannot be in p/q form. Therefore, contradiction and our question is done. Okay, okay, that's it. √2 irrational कैसे प्रूव करते हैं? ये √2 वाला irrational concept ये हमें ठीक से करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको. रिविजन कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे. लेट √2 कंसिडर टू बी रैशनल. पहले चलो मैं रिवाइज कर ही देता हूँ. अरे इसको क्या हो गया, हैंग. या इट स्टार्टेड. ओके, ठीक है, देखते हैं. √2 को हम लोग इरेशनल प्रूव करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, लेट √2 बी रैशनल. तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 इज इक्वल्स टू p/q फॉर्म, वेयर p, q belongs to integer and q not equal to 0, and HCF of p, q is equals to 1. Highest common factor, there is nothing in common basically. p and q में कुछ भी कॉमन नहीं है. HCF 1 है मतलब. तो स्क्वायर करते हैं. 2 is equals to p² अपॉन q². तो 2q² is equals to p². इसका मतलब क्या हो गया, p² is a multiple of 2 और p² has got a factor 2. तो p² has 2 फैक्टर. अगर p² है तो p को भी होगा ही. p हैज़ 2 फैक्टर. 2 एज ए फैक्टर ऐसे बोल सकते हैं हम, एज ए फैक्टर व्हाटएवर. ठीक है, अगर p हैज़ 2 फैक्टर मतलब p क्या होगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, मतलब 2 इंटू समथिंग. इसका मतलब p हैज़ गॉट 2 फैक्टर मतलब p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग. ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है, ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ. आई विल पुट दैट इन इक्वेशन नंबर 1. तो अगर 2q² इज इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर. तो 2q² इज इक्वल्स टू 4x². q² इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, x² हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया, q हैज़ 2 एज ए फैक्टर. q² हैज़ गॉट 2 एज ए फैक्टर एंड अल्टीमेटली q हैज़ 2 एज ए फैक्टर. बराबर है. तो देयरफॉर p एंड q बोथ हैज़ 2 एज अ फैक्टर. इसका मतलब HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 2. हाइस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या बोला है, HCF इज 1. तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट एंड देयरफॉर √2 इज अ रैशनल. ठीक है ना, समझ में आ गया. मतलब इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1. सो दैट्स द रीजन इट इज, क्या बोल रहे हैं, हो गया फिर से. क्यों हैंग हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है. वेट बाबा वेट. हाँ, ओके डन. चलो अभी 1 बाय 1. 35th क्वेश्चन भी इजी है, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे लगता है ये हैंग हो रहा है. एनीवे, प्रूव दैट दिस इज द रैशनल नंबर. तो क्या करते हैं हम लोग, 3 + √5 इज इक्वल्स टू p/q. तो √5 इज इक्वल्स टू p/q माइनस 3. √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन q. तो हो गया ये p/q फॉर्म विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, राइट. तो ईजी है, इजंट इट. इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी सिंपल. प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, मतलब ये आपको क्या करना है, थ्योरम प्रूव करना है और उसके बाद ये प्रूव करना है. हो गया, काम खत्म. दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. ये भी हमने किया हुआ है ना,
अभी किया है, करो करो खुद से करो। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ये हमने इसमें किया था, आपके वर्कशीट में सॉल्व है ये, फिर भी मैं बता देता हूँ। लगता बहुत डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत सिंपल। फाइंड एलसीएम ऑफ ऑल दीज 1 to 10 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। नॉट अ बिग डील, ईजी है। 1 का कुछ प्रॉब्लम नहीं। 2 1 3 1 2 2 5 3 2 into 3 1 7 1 2 3 2 and 5 into 2। एलसीएम क्या होता है, ऑल द प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट पावर। तो 10 तक प्राइम नंबर 7 है ना। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं, 5 आएगा, 6 नहीं, 7 आएगा। 10 तक प्राइम नंबर तो इतना ही है, दैट्स इट। ओके, अभी इसका क्या करना है, हमें हाईएस्ट पावर देना है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 2 क्यूब। 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, इसका 1 है। हो गया, आंसर आ गया, दैट्स इट। तो ये दिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। नेक्स्ट वन, ये स्टैकिंग वाला क्वेश्चन है, एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। ये आने के चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी कर दो। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो 100% आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि आप लोगों को कौन सा मेथड यूज़ करना है टू फाइंड एचसीएफ। तो ईडीएल यूज़ कर सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टरेशन यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो स्टैकिंग का क्वेश्चन जब भी आता है या फिर कोई भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है डिवाइड करने वाला, तो किसका होता है, एचसीएफ का होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करो, नंबर ऑफ स्टैक फाइंड करना है, तो एचसीएफ से इस नंबर को डिवाइड कर दो, तो यू गेट द नंबर ऑफ स्टैक्स एज वेल। ठीक है, तो करो खुद से, यू कैन डू दैट क्वेश्चन, इजंट इट। आपके बुक में तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। मैं ये रिविजन क्यों लिखता हूँ, सो दैट आई कैन इंस्टिगेट यू फॉर रिवाइजिंग। okay, I can motivate you for solving or starting work. If I just keep it on you कि हाँ आप लोग करोगे, सब कुछ आपके पास है ही पहले से किया हुआ, तो आप लोग क्या करोगे, हाँ बाद में करेंगे ऐसा, दिस इज़ द वे हाउ यू विल फॉलो। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू somewhere kind of a force I wanted that I should create so that you all will start working. तो आई एम फोर्सिंग यू नाउ टू वर्क फॉर द रियल नंबर। तो आज के दिन में आपका रियल नंबर टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो पुट एन एंड टू द रियल नंबर टॉपिक एंड वर्क फॉर द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द टुमारो। सो कल मैं नई आपको शीट दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। पॉलिनॉमियल के लिए वर्क करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी रियल नंबर के लिए वर्क किया, सॉरी लीनियर इक्वेशन के लिए वर्क किया है। ट्रायंगल ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक किया तो काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो हमें करना क्या है, पॉलिनॉमियल पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके बाद हम लोग जो लेंगे टॉपिक कौन सा लेंगे, पॉलिनॉमियल लेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो।